बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम। सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग, किन बच्चों का नंबर था? सबसे पहले आएगा अरशद। आ जाओ बच्चे। अरशद फ्राम टोबर टेक सिंह। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are good and fine. Today I'm going to talk about Defense Day. On 6 September 1965, there's a Pak-Indo war in which thousands of soldiers and officers sacrificed their life for their country, like Major Aziz Bhatti, Major Tufail, and Havaldar Lalak Chand, etc. In the midnight of 6 September, Indian Army crossed the international border of Pakistan and attacked on the areas of Lahore and Kasur. Pakistan Army do their best in reply and push the enemy's army back. On 7 September, this day is also known as Yom Fizaiya, a single Pakistani pilot, MM Alam, he is a squadron leader and also awarded as Tara-e-Jurrat. He shot down 5 Indian jets in 1 minute. After this, Indian Air Force do not dare to come again. Moreover, war continued about 17 days and Pakistan won this war. I am thankful to all those martyrs who sacrificed their life for their religion, for their country and for their motherland and for all of us. Thank you. ओके, नेक्स्ट आ जाओ बच्चे। आफ्ताब आए। Assalamu alaikum everyone. Today my topic is Defense Day of Pakistan. We proudly celebrate the Defense Day of Pakistan every year in the memory of our beloved and gallant soldiers and Shohada of India-Pakistan War in 1965. 6 September 1965, Indian Army at 5 a.m. Indian Army attacked Pakistan from Lahore Burki sector. This 17 days war caused thousands of casualties on both sides and it ended in a man-rated ceasefire. Pakistan Army officers like Major Raja Aziz Bhatti Shaheed, Major Muhammad Akram Shaheed, Major Tofail Shaheed, Captain Sarwar Shaheed, Lance Naik Muhammad Mahfuz Shaheed, etc. Sacrificed their life for and awarded with Nishan-e Haider for this act of bravery. All these personalities are proud of us. Thank you. माशाल्लाह, क्लैपिंग कर दे, बहुत अच्छा बोला जी। नेक्स्ट आ जाए थर्ड अलीम। Assalamu alaikum. Today my topic is Defense Day of Pakistan. Defense Day of Pakistan is celebrated on 6 September every year. It is celebrated on the memory of people who martyred in the war of 1965. This war was started on 6 September and ended on the 23rd October. This war was fought between Pakistan and India in the issue of Kashmir, but that issue remained unsolved. This war affected both countries. Both countries financially and other things, but none of them dominate. This war lost many lives of people from the both countries, and at the last this war was ended by the help of United Nations. Dear fellows, we celebrate that day in the memory of our beloved and brave soldiers that sacrificed their lives of the motherland and embraced Shahadat and made successful
the defense of Pakistan and Lahore and other important city of Pakistan. Pak Army officers like Major Aziz Bhatti, Captain Sarwar Shahid, and Major Muhammad Akram Shahid, like these, they sacrificed their life on the motherland and embraced Shahadat. May Pakistan live long. माशाल्लाह। बच्चे जब बैठते हो ना तो किस तरह नहीं बैठना, जो बच्चे ऐसे बैठे हैं, याद चीज़ सिखानी पड़ती है। सीधे दोनों पाँव सीधे, इंटरव्यू में भी याद दिए बनाएं। क्रॉस लेग नहीं बैठना, पाँव को ऐसे नहीं बढ़े गलत, इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस। पूरी बॉडी लैंग्वेज भी चेक की जाती है। जी सर, ये आपने जैसे बताया कि 17 डेज तक ये वॉर रही थी, लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है कि 6 सितंबर से 23 अक्टूबर तक रहेगी? नहीं, 17 दिन थी टोटल। कितने दिन थी? 17 कन्फर्म है। बहुत किताबों में देखेगा, हिस्ट्री पढ़ेंगे ना फिर पता चल जाएगा। पाकिस्तान हिस्ट्री को पढ़ें, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ें, गलती भी हो सकती है उनसे। 17 दिन ये बार आता भी है क्वेश्चन इसका। और पहले ये जंग से पहले भी एक जंग हुई है ना, रन ऑफ कच्छ, पता ना, ये वो माहौल बन रहा था। अभी रन ऑफ कच्छ क्या है, ये किधर एरिया है, सिंध के किस एरिया की तरफ, पार कौन सा एरिया बनता है, पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्यों, कहाँ से ये रन ऑफ कच्छ शुरू हुई। वहाँ से फिर माहौल बनना शुरू हो गया। समझिए बात। जो नेक्स्ट आ जाए, कौन बचाएगा? चले जी, आप बचे आ जाओ, बल्कि बैठे बैठे बताएं। इसमें नकरा किसे कहते हैं? इसमें नकरा जिसकी इसम की तारीफ़ की जाए सर, इसमें इसमें नकरा किसी आम शख्स या किसी बड़ी जगह को कहते हैं, या किसी आम सी चीज़ को कहते हैं, जैसे अकरम, लाहौर, लेज़। इसमें मारफा किसे कहते हैं? इसमें मारफा जिसमें आम सी जगह और जिसमें आम सी जगह और सही कह रहा है बच्चा, बिल्कुल टोटली गलत कह रहे हैं। आप बताओ बच्चे, पुअर परफॉर्मेंस। जी बताएं, इसमें मारफा किसे कहते हैं? कोई भी खास शख्स, खास। इसमें नकरा आम है और इसमें मारफा खास है। फॉर एग्जांपल बताएं बच्चे। फॉर एग्जांपल कायदे आज़म, लाहौर, कुरान पाक। ये अभी ये भी तुम्हें नहीं पता बच्चे। इसमें मारफा नकरा का, तो कैट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं। चलो आप इसमें मशतक बताओ किसे कहते हैं? इसम मशतक वो जो किसी खास कायदे के मुताबिक इसम मस्दर से बनाया गया हो, इसम मशतक कहलाता है। इसमें जामिद बताओ बच्चे आप। ऐसा इसम जो किसी जो ना किसी कलमे से बना और ना ही उससे कोई कलमा बने, मसलन पत्थर, ईंट, बच्चा। कलमा किसे कहते हैं? इस बच्चे कलमा किसे कहते हैं? डिफिनेशन क्या है कलमे की? बड़े बच्चे, ये छोटे ने कट कॉलेज किया है। कलमा किसे कहते हैं? अब मानी, इसका कोई ना कोई मतलब होगा। क्या हो? कलमा। मोहमिल किसे कहते हैं? हाँ, जैसे पानी, वानी। वानी क्या है? रोटी, छोटी लग गया, पहले उसको पहले वो लफ्ज़ में स्ट्रेस पैदा करने के लिए, जोर पैदा करने के लिए लफ्ज़ लगाया जाता है, तो इसका मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस है। बात है ये समझ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मोमिल किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप बेटा तैयारी करो। अच्छा, आप तैयारी नहीं कर रहे, सिर्फ आप हंसते रहते हैं दूसरों पे। यू आर नॉट सीरियस, टोटली सीरियस नहीं है आप, बिल्कुल सीरियस नहीं है। इसकी अम्मी को भी बता रहे हैं, वीडियो देख सकती हैं वो। जी नेक्स्ट आएगा बच्चा, तो थोड़ा सा मैं करूँगा, एक पेन की आवाज़ ना आए, टक टक। एक मुझे नोट्स दे दें ज़रा। चलें जी, आप बेटा बताएं। 3 दिन क्वेश्चन पूछूंगा। कितने पूछूंगा? हर बच्चे से 3 क्वेश्चन पूछूंगा। हाउ मैनी मक्की सूरा आर देयर इन होली कुरान? 86। मक्की और मदनी में क्या फ़र्क है? जो यार मक्का में नाज़िल हुई है। यार इस पे मैं इतना बताया, आप वीडियोस नहीं देखते लगता है मेरी, गलत बता रहे हैं। कौन बताएगा बच्चा? मक्की और मदनी सूरतों में। जी बच्चा। मक्की जो है वो हिजरत से पहले की सूरत। गुड शाह। हिजरत से पहले उसे क्या कहेंगे? और हिजरत के बाद चाहे वो मक्का में ही नाजिल हों, तो उसे क्या कहेंगे? मदनी सूरतें कहेंगे। क्लियर होगी बात? बैठ जाए। सूरह फातिहा जो है, ये मक्की है, ये मदनी है? सूरह फातिहा ये मक्की भी है और मदनी भी है, 2 दफ़ा नाजिल हुई है ये। सूरह फातिहा का दूसरा नाम क्या है? बैठ जाए।
सूरत सलात। सूरत सलात, गुड, शाबाश, क्लैपिंग करने बच्चे के लिए, छोटे बच्चे ने बताया। व्हाट इज द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम? नमाज। और थर्ड पिलर क्या है? रोज़ा। रोज़ा। जी हाँ, बताओ बच्चे। तीसरा पिलर कौन सा है? जी उधर से। ज़कात है। वो 4 में पढ़ते हो, कलमा, नमाज, रोज़ा, वो रटा लगाया हुआ है आप लोगों ने। तीसरा रोज़ा नहीं है, तीसरा ज़कात है। लिख लो ये, बैठ जाए। अबू तुराब वाज द फैमिली नेम ऑफ मौला अली अलैहिस्सलाम। वेयर इज द मज़ार बाबा बुले शाह रहमतुल्लाह अलैह? कसूर। पेन से मत करो बच्चे, खेलो मत। नेक्स्ट आ गया, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया? एशिया का सबसे तवील दरिया कौन सा है? यंगजी इन चाइना। ठीक है, आप तो भी आए ना, आप तो अभी पहुँचे, अभी ये बच्चा आज मेरे पास पहुँचा है। चलो वैसे आपसे पूछता हूँ, व्हाट डज द वर्ड कुरान मीन्स? रीड वन का मतलब क्या है? बार बार पढ़ी जाने किताब। व्हेन वाज द सर सैयद अहमद खान बोर्न? He was born in 1817 and died in 1898. गुड, सही है। आप बच्चे बताओ। हो सकता है इसको पब्लिक कर दूँ, अच्छी वीडियो बन रही है, तैयारी ठीक है, स्पीच सही किए तो उसको मैं क्या करूँगा, पब्लिक कर दूँ। बहुत सी वीडियो हम पब्लिक नहीं कर रहे, अनलिस्टेड करते हैं, और अनलिस्टेड वीडियो ऑनलाइन एकेडमी के बच्चे देख सकते हैं, जो ऑनलाइन एकेडमी कैसे हैं, जिन्होंने पे किए हुए हैं। और जो दूसरी वीडियोज़ हैं इस तरह की जो हम बना रहे हैं स्टूडेंट्स की, वो पब्लिक ज़्यादा नहीं कर रहा मैं। देखेंगे पब्लिक करते हैं कि नहीं करते। टोटल सूरतें कितनी हैं कुरान शरीफ की? 140 या 14? हाउ मेनी एक्ट्स आर ऑब्लिगेटरी वाइल ऑफरिंग हज? 3। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू? अरसल। लीमा। गुड, बैठ जाए। आप बच्चे बताओ, अरकान इस्लाम कितने हैं? 7। आंसर नहीं है। कौन कौन से हैं बेटा? 5। 5 से 7 कौन कौन से हैं? ठीक। नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। ठीक। जहाज जो है ये छठा है, लेकिन ये क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया किसे कहते हैं? बैठ जाए। फ़र्ज़ किफ़ाया जिसके अदा ना करने से गुनाह नहीं होता। नहीं, अगर थोड़े से इलाके के लोग कर लेंगे तो सब की तरह से, कोई नहीं करेगा, सब गुनाहगार होंगे। बैठ जाए। अल फारूक क्या है? व्हाट इज़ अल फारूक? सीधे बैठो बच्चे। अल फारूक मौलाना शिबली नुमानी की किताब है। मौलाना शिबली नुमानी कौन थे? मौलाना शिबली नुमानी सर जी बेटा बताएं। उर्दू शायर थे सर। शायर थे, मुसन्निफ थे। उनकी किताबों को और कौन सा नाम है? इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन सीरत नबी सर। सीरत नबी की कितनी जल्दें थी? 6 जल्दी थी। कितनी जल्दी थी? लिख लो, ये चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ। 6 थी। 3 उनकी ज़िंदगी में शाया हुई हैं और 3 उनकी ज़िंदगी के बाद शाया हुई, लिखी हुई थी उन्होंने। अल फारूक एक उनकी लिखी हुई सीरत किताब है, जो किसकी है? सीरत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल नोमान है शिबली नुमानी की लिखी हुई सूरत, ठीक है। इसके अलावा शिबली नुमानी की जो शख्सियत है, बड़ी जानदार शख्सियत थी, ठीक है। जज्बाती शख्स थे, जज्बाती शख्स थे, काबिल तरीन शख्सियत थे, और सर सैयद अहमद ख़ान के रफ़क़ाए कार में आपका शुमार होता है। मुसन्निफ़ थे, तारीख़ निगार थे, मुअर्रिख़ थे, सीरत निगार थे। तो बहुत से पहलू आपकी शख्सियत के। सफ़रनामा निगार भी थे, सफ़रनामा निगार भी थे। सफ़रनामा मिस्र, रूम और शाम लिखा आपने, मिस्र, रूम और शाम का सफ़र किया तो उस पर किताब सफ़रनामा लिखा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में कितना अरसा रहे? 10 साल। और मक्का में 53 ईयर। इंडिपेंडेंस डे जो वार है ये कब हुई? जिसको हम जंग आज़ादी कहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ को क्या कहते हैं? गदर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हिंदुओं ने और मुसलमानों ने हमारे साथ क्या किया? गद्दारी की है। 1857 की जंग हुई। इस जंग में मुसलमानों को और हिंदुओं को फतह हुई या नाकामी हुई? वजह क्या थी नाकामी की? दो मेन वजूहत थी। नंबर 1 असले की कमी थी। दूसरा, मुसलमानों और हिंदुओं में इत्तेफाक नहीं था, मजहबी मुनाफरत थी, उस इत्तेफाक से लड़े नहीं थे। और जंग ये जब हार गए मुसलमान हिंदू, तो अंग्रेज़ ने किसको ज़्यादा पस्ती का शिकार किया? मुसलमान को जानबूझ को पस्ती का शिकार किया, ताकि मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों के माजी से भी आशना थे, हिस्ट्री से भी, और हिंदुओं की हिस्ट्री से भी आशना थे। उन्हें पता था कि हिंदू अगर तालीम हासिल कर लें तो इतने में जान नहीं है, बहादुर नहीं है, ईमान नहीं है कि हम पे ये काबिज हो सके या फातेह बन सके। लेकिन मुसलमानों की भी हिस्ट्री से आगाह थे कि बहादुर हैं, दिलेर हैं, ईमान वाले हैं। अगर इन्होंने तालीम हासिल कर ली तो हमें इस इलाके से निकाल बाहर कर देंगे, जैसे किया बाद में। टीपू सुल्तान की लाश के करीब भी नहीं गए 3 दिन, उसकी बहादुरी की वजह से। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू में कौन कौन से? ऊंचा बोलो ना, ऊंचा बोलो। कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना, और हाथ धोना कोनिया समेत और टखनों समेत पाँव धोना, चौथाई साल का मसला। ये कितने बता दें? ये तो 5 हो गए जी। पूरा मुंह धोना, पूरा दो, एक ठीक हो गया। नेक्स्ट, कुली करना नहीं है, हाथ कोने समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना, और चौथा पाँव टखनों समेत धोना। कुल्ली का नाक में पानी चढ़ाना नहीं है, ये गुस्ल में आएगा। फिर गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? 3 हैं। कि कौन कौन से हैं जी? सर 3 दफ़ा कुली करना, अलग तक पानी जाए, और दूसरा नाक में 3 दफ़ा पानी डालना, नरम हड्डी तक पानी जाए, तीसरा सारे बदन पे पानी बहाना। कम से कम 1 दफ़ा पानी होना चाहिए, कम से कम 1 दफ़ा, नहीं तो 3 और बाल के बराबर की जगह खुश्क ना रहे। बाल के ये वाली जगह अक्सर है, ये नाक कान के अंदर ना, ये वाली जगह, इधर भी आपने उंगली ऐसे करनी है, गीला करना है, नाक में भी करनी है, उंगलियों के अंदर भी वो करना है। नेक्स्ट आ गया जी, हु वाज द हेड ऑफ अवामी लीग? अवामी लीग के हेड कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। जुल नूरैन इज टाइटल ऑफ जुल नूरैन। मुझे सीधे बैठो ना। जुल नूरैन जी बताएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह पूरा बताया करो बच्चे, क्यों कहा जाता है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को जुल नूरैन? क्योंकि सर उन्होंने नबी पाक की सल्लल्लाहु की 2 बेटियों से शादी की थी। एक के बाद एक 2 से निकाह हुआ था, शादी हुई थी। कौन कौन सी बेटियों के नाम पता है? नबी पाक की सबजादियाँ कौन कौन सी थी? हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा। बैठ जाएं। टोटल बेटियाँ कितनी थी नबी पाक की? 4। कौन कौन सी? नाम सरमद बताएं। बेटी थी सबसे पहली बेटी बड़ी थी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। और तुम्हें कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह, और छोट हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह। नबी पाक के बारे में पता होना चाहिए ना बेटा। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट साल्ट माइन ऑफ पाकिस्तान किधर है? सबसे बड़ी जो कान है जी, खेवड़ा में। किधर है? खेवड़ा में। सन शाइन्स इन दी ईस्ट डैश, शुरू में क्या है? द सन शाइन्स। लास्ट मुगल किंग कौन है? लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह। ऊंचा बस सारे बोलो तो आते हैं आप लोग। 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आज़म। कंक्वेस्ट ऑफ मक्का 630 AD। AD किसे कहते हैं? किन का डिपार्चर? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो ईसवी ये चल रही है। दो अभी कौन सा AD है? 2022 AD है ये। AD एक होता है BC
BC से क्या बनते हैं? बिफोर क्रिस्ट, कबल मसीह जिसे हम कहते हैं। एक है AH, आफ्टर हिजरा या हिजरी। नबी पाक ने हिजरत कब फरमाई? उस टाइम कौन सा AD था? 622 AD था, यकम हिजरी है। कहाँ से हिजरत फरमाई नबी पाक ने? मक्का से मदीना की जानिब। What was the tribe of Hazrat Bilal रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? हबशी। Who gave azan first time? हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। What is the capital of Sri Lanka? हजरत बिलाल हबशी आप पढ़ते रहते हैं। हजरत बिलाल हबशी की पूरी हिस्ट्री बतानी है। पूरी हिस्ट्री कौन कल बताएगा? हाँ, निकल याद करके आनी। पूरी बच्चों को सिखानी है कि हजरत बिलाल हबशी कौन थे, कितनी बड़ी शख्सियत थे। पूरा मैं हजरत बिलाल के रज़ियल्लाहु ताला के बारे में, उनका बचपन कहाँ गुजरा, लड़कपन कहाँ गुजरा, जवानी कैसी थी, पूरा A to Z बता देना है, ठीक है, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को पता चले कि हमारे जो असलाफ थे, साहबे किराम थे, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं दीन के लिए, इस दीन के लिए। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, यंगजी। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन कौन सा है? दूसरे नंबर पे कौन सा है? इस्लाम। इंशाल्लाह इस्लाम हम 1 पे जाएगा। जिस तरह हमारे लोग काम कर रहे हैं दीन के लिए, मुसलमान नंबर 1 पे इंशाल्लाह, और तेज़ी से मुसलमान होते जा रहे हैं लोग। इसको देख के, इस मज़हब में, इस दीन में, ये असल रास्ता है, ये सुकून भी और नेचुरल के करीब है, एंड फितरी और सही, मतलब जो रास्ता है वो दीन इस्लाम है। जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनको हम यही मैसेज देते हैं कि स्टडी करें, इस्लाम को मुताला करें। गैर मुस्लिमों को हम यही मैसेज देते हैं कि तुम मुताला करें, फिर पता चलेगा कौन सा मज़हब ठीक है। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज़ चाइना। सबसे गुंजान आबाद सिटी कौन सा है? टोक्यो। किधर है? जापान का रकबा कितना है? रकबा कितना है जापान का? जापान किस तरफ है? लेफ्ट राइट क्या है जापान की? सारा पता होना जी। जोग्राफी आपने वर्ल्ड मैप को सही याद, सब ने आज कल न कल जाके सुबह सबसे पहले क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड मैप लेने। कितने का मिलेगा बच्चे? 40-50 रुपए का मिल जाएगा, 100 रुपए का मिल जाएगा। हर बच्चे के पास क्या होना चाहिए? वर्ल्ड मैप। ऐसे फिंगर टिप्स याद हों, क्योंकि इंटरव्यू में वर्ल्ड मैप पूछ रहे हैं। अटलांटिक क्वेश्चन किधर है, पैसिफिक क्वेश्चन किधर है, पनामा कैनाल किधर है, स्विस कैनाल किधर है, सारा आपको याद होना चाहिए। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।